السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت سے ملوکیت تک صحیح مسلم کی حدیث ہے 4061 میں ایک نہایت اہم واقعہ محفوظ ہے جو معاویہ کے دور امارت میں پیش آیا۔ ایک غزوہ کے موقع پر جب مسلمانوں کے ہاتھ عطیات اور غنیمت آئی تو معاویہ نے حکم دیا کہ ان کے عطیات کو نقدی کے بدلے فروخت کر دیا جائے۔ یہ صریح طور پر بیع عینہ اور سود کے قریب تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت کو جب یہ بات پہنچی تو وہ فوراً کھڑے ہوئے اور پوری جرات کے ساتھ اعلان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے نمک نہ بیچا جائے مگر برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ۔ جس نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا وہ سود کا لین دین کرنے والا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے فوراً اپنے سودی معاملے واپس کر دیے۔ جب یہ خبر معاویہ کو پہنچی تو وہ منبر پر چڑھے اور کہا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھی آپ کے پاس رہتے تھے مگر ہم نے آپ سے یہ باتیں نہیں سنی۔ اس پر حضرت عبادہ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، ہم وہی احادیث بیان کریں گے جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، خواہ معاویہ ناپسند کرے، خواہ اس کی ناک خاک آلود ہو، مجھے پرواہ نہیں کہ میں اس کے لشکر میں ایک رات بھی گزاروں۔ اس روایت پر امام نووی نے شرح صحیح مسلم جلد 11 صفحہ 9 میں لکھا ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام حکمرانوں کے ایسے احکام کو رد کر دیتے تھے جو شریعت کے خلاف ہوں۔ حافظ ابن حجر فتح الباری جلد 4 صفحہ 364 نے کہا، اس سے واضح ہے کہ ربا کی حرمت قطعی ہے، اس میں کسی اجتہاد کی گنجائش نہیں، اور حضرت عبادہ نے اسی اصول پر معاویہ کے فیصلے کو رد کیا۔ ابن تیمیہ مجموعہ فتاوی جلد 29 صفحہ 220 نے بھی صاف کہا کہ بعض عمراء نے بیع عینہ یعنی سود کو رائج کرنے کی کوشش کی لیکن صحابہ نے اس پر سختی سے انکار کیا جیسے عبادہ نے معاویہ پر کیا۔ یہ واقعہ تاریخ کے صفحات پر ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ معاویہ نے سودی لین دین کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی مگر صحابہ نے اسے مسترد کر دیا۔ حضرت عبادہ کا یہ اعلان کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضرور سنائیں گے خواہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، اور مجھے پرواہ نہیں کہ میں اس کے لشکر میں ایک رات بھی نہ گزاروں۔ اس واقعے پر امام نووی شرح صحیح مسلم جلد 11 صفحہ 9 نے لکھا ہے کہ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ حکمرانوں کے خلاف بھی ڈٹ جاتے تھے جب وہ شریعت سے ہٹ کر حکم دیتے تھے، اور حافظ ابن حجر فتح الباری جلد 4 صفحہ 364 نے واضح کیا کہ ربا کی حرمت قطعی ہے، اس میں کسی اجتہاد کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح ابن تیمیہ مجموعہ فتاوی جلد 29 صفحہ 220 نے بھی تسلیم کیا کہ بعض عمراء نے سودی معاملات کو رواج دینے کی کوشش کی لیکن صحابہ نے ان کا انکار کر دیا جیسا کہ عبادہ نے معاویہ کے حکم کا انکار کیا۔ یہ واقعہ اس تاریخی حقیقت پر مہر ثبت کرتا ہے کہ معاویہ سودی لین دین کو رائج کرنا چاہتے تھے لیکن صحابہ کرام نے انہیں کھلے عام رد کیا اور اعلان کر دیا کہ دین کی اصل بنیاد نص نبوی ہے، نہ کسی حکمران کی سیاسی یا مالی پالیسی۔ امام نووی اور ابن حجر نے وضاحت کی ہے کہ یہ اجتہاد کی گنجائش والا معاملہ نہیں ہے، سود کی حرمت قطعی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 4776 میں عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کا یہ بیان محفوظ ہے کہ معاویہ لوگوں کو ناحق مال کھانے اور اپنی جانوں کو تباہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے کہا، معاویہ کی اطاعت صرف اس حد تک کرو جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو اس میں معاویہ کی بات نہ مانو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود صحابہ نے بھی تسلیم کیا کہ معاویہ کے احکام میں شریعت سے انحراف پایا جاتا تھا۔ مزید یہ کہ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ معاویہ بیت المال کو ذاتی جاگیر سمجھتے تھے۔ تبری تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 272 اور ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 405 کے مطابق انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور خاندانوں کے افراد کو بے تحاشا عطیات دیے اور بیت المال کو بنی امیہ کے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ذر جیسے جلیل القدر صحابی نے مال کے ناجائز ذخیرہ کرنے پر شدید تنقید کی اور معاویہ سے ان کی کھلی بحث تک ہوئی۔ یہ تمام شواہد مل کر اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ معاویہ کی مالی پالیسیوں میں سود، ناحق مال خوری اور بیت المال کی لوٹ مار جیسے پہلو نمایاں تھے۔ صحابہ کرام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی لیکن تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ معاویہ نے حکمرانی کے نام پر ان اصولوں کو نظر انداز کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قائم فرمائے تھے۔ معاویہ اور مالی بدعنوانیاں، سود، ناحق مال خوری اور بیت المال کی لوٹ مار۔ اسلامی تاریخ میں امیر شام معاویہ کی مالی پالیسیوں پر شدید تنقید ملتی ہے۔
मजीद ये कि मौरखैन ने जिक्र किया है कि मुआविया बैतुल माल को ज़ाती जागीर समझते थे। तबरी तारीख़ तबरी जिल्द 5 सफ़ा 272 और इब्न असीर अल कामिल जिल्द 3 सफ़ा 405 के मुताबिक उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों और ख़ानदान के अफराद को बेतहाशा अतियात दिए और बैतुल माल को बनु उमैया के इक़्तिदार को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि हज़रत अबू ज़र ने भी उनकी माली बदउनवानियों पर सख्त एहतजाज किया। सही बुखारी हदीस नंबर 1402 और तबरी के मुताबिक अबू ज़र ने बैतुल माल में ज़ख़ीरा होने वाले सोने चांदी के अंबार देखकर मुआविया से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे माल की ज़्यादती और ज़ख़ीरा करने से मना फरमाया था और आप इसमें इजाफा कर रहे हैं। अबू ज़र ने साफ कहा कि ऐसा करना जुल्म और जुल्म पर मबनी हुक्मरानी है। मुआविया ने उस पर गुस्सा जाहिर किया और अबू ज़र को तंबिया की, लेकिन अबू ज़र पीछे नहीं हटे और वाज़ेह किया कि बैतुल माल अवाम के लिए है, न कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ये तमाम शवाहिद मिलकर इस हकीकत पर रोशनी डालते हैं कि मुआविया की माली पॉलिसियों में सूद, नाहक मालखोरी और बैतुल माल की लूट मार जैसे पहलू नुमायां थे। सहाबा किराम ने उनकी इस्लाह की कोशिश की, लेकिन मुआविया ने हुक्मरानी के नाम पर उन उसूलों को नज़रअंदाज किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कायम फरमाए थे। यही वजह है कि सही मुस्लिम और दीगर मुअत्तर अहादीस में मुआविया की माली इनहराफ का वाज़ेह जिक्र मौजूद है और तारीख भी इसकी तस्दीक करती है। ये हदीस सही बुखारी 480 वाकई अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल काबा की हक्कानियत की तस्दीक करती है, क्योंकि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस को एक वाज़ेह नसीहत दी कि बुरे लोगों के दरमियान रहने पर तुम्हारे हाल का अंदाज लगाओ और उसमें हाथ की उंगलियों के इशारे से इबरत भी दिखाई। इसका मतलब यह है कि अगर इंसान हक पर कायम रहे लेकिन बुरे या गुमराह लोगों के साथ हो तो उसके हालात में मुश्किलात आएंगी और उसे मोहतात रहना होगा। इस रिवायत में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल काबा के मौक़िफ़ की सदाकत इस तरह साबित होती है कि वो इस पैगाम को सही अंदाज में लोगों तक पहुंचाते थे और उनकी रावी हैसियत मुस्तनद है, जैसा कि दीगर मुहद्दिसीन ने भी उनकी रिवायत को मुअत्तर करार दिया। यानी ये हदीस न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह और नसीहत की दलील है, बल्कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल काबा की सदाकत और हक्कानियत का भी मज़हर है। शाम में सहाबी उबादा बिन सामत ने मुआविया के काफिले को देखा जिसमें ऊंटों की कतार मौजूद थी। जब उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये क्या है तो मालूम हुआ कि ये शराब है जो मुआविया ने फरोख्त के लिए भेजी है। उबादा ने फौरन एक छुरी लेकर ऊंटों पर लदी शराब को चक कर दिया और तमाम शराब बहा दी। ये वाक़या तोहफ़ा इतना सरिया सफ़ा 638 तारीख इब्न असाकिर जिल्द 26 सफ़ा 97 और सीर आलामुन नबला जिल्द 2 सफ़ा 10 में दर्ज है। अगरचे बाज़ कुतुब में तहरीफ के साथ मुआविया का नाम फला कर दिया गया, लेकिन असल हकीकत के साहबी ने अमीर शाम की भेजी हुई शराब बहा दी। शेख शुएब अर्नौत ने सीर आलामुन नबला के हाशिये में इस वाक़ये की सनद को हसन करार दिया है। इसी तरह अल्लामा मुत्तकी अल हिंदी ने मिलती जुलती रिवायत नकल की है कि मोहम्मद बिन काब अल कुर्ज़ी ने बयान किया कि अब्दुर्रहमान बिन सुहैल अंसारी ने हज़रत उस्मान के दौर में एक जंग में हिस्सा लिया और उस दौरान शाम में मुआविया इब्न अबी सुफियान के शराब भरे कनस्टर देखे। अब्दुर्रहमान ने अपना नेज़ा पकड़कर हर कनस्टर में घोंप दिया। गुलामों ने मज़ामत की, लेकिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि अल्लाह की कसम मुआविया झूठ बोल रहा है, मैं अपने होश व हवास में हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शराब से मना किया। अगर मैं जिंदा रहूं और उसे दोबारा ऐसा करते देखूं तो या तो मुआविया को सजा दूंगा या खुद मार दूंगा। ये वाक़या कंजुल उम्माल जिल्द 5 सफ़ा 713 हदीस नंबर 13716 के अलावा फैजुल कदीर जिल्द 5 सफ़ा 462 रिवायत नंबर 7969 तारीख़ दिमश्क जिल्द 34 सफ़ा 420 असदुल गाबा जिल्द 1 सफ़ा 699 और अल-असाबा जिल्द 4 सफ़ा 313 रिवायत नंबर 5140 में भी मौजूद है। ये सब वाक़यात अब्दुर्रहमान बिन सुहैल और उबादा बिन सामत की हक्कानियत, दीन पर पुख्ता ईमान और मुआविया के खिलाफ शरीयत की पैरवी की वाज़ेह दलील हैं। तारीख़ी और हदीसी मसादिर के मुताबिक मुआविया बिन अबी सुफियान के शराब नोश होने का वाक़या बिल्कुल वाज़ेह और नाकाबिले इनकार है। अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में ये रिवायत सही सनद के साथ मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन बुरैदा अपने वालिद के साथ मुआविया के पास गए। मुआविया ने दोनों को इज्जत दी, बिछौने पर बिठाया, खाना खिलाया और फिर एक मशरूब लाया गया। रिवायत के मुताबिक सबसे पहले मुआविया ने वो मशरूब पिया और फिर बुरैदा के वालिद को दिया। इस पर उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, मैंने उस दिन से ये नहीं पिया जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम करार दिया है। इस जवाब से बिल्कुल वाज़ेह है कि वो चीज़ शराब थी, क्योंकि साहबी ने बराह रास्त उसको हराम कहकर रद्द किया। मजीद ये कि खुद मुआविया ने भी एतराज़ किया कि वो कुरैश के हसीन और उम्दा दांतों वाले नौजवानों में से थे।
और उन्हें किसी चीज में इतनी लज्जत न आती थी जितनी कि शराब और अच्छी गुफ्तगू में आती थी। ये रिवायत न सिर्फ मुआविया के शराब पीने पर दलालत करती है बल्कि उस हकीकत को भी जाहिर करती है कि उन्होंने बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हुक्म को नज़रअंदाज किया। ये अल्फाज मुआविया की तबीयत और शराब नोशी की आदत पर खुला हुआ सबूत हैं। इस रिवायत को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद हदीस नंबर 22,838, 22,839 और इमाम नसाई ने अपनी सुनन अल कुबरा हदीस नंबर 5,664 में सही सनद के साथ नकल किया है। ये सबसे बड़ी और कतई दलील है कि मुआविया शराब नोश थे और शराब को अपने लिए बाइस लज्जत समझते थे। अगर किसी शख्स का शराब बेचना मुअत्बर और सही रिवायत से साबित हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वो शराब के हराम होने को मामूली समझता था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के पीने, बेचने, खरीदने, ले जाने, पिलाने और उसके किसी भी अमल में शरीक होने पर लानत फरमाई है। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 3674, इब्ने माजा हदीस नंबर 3381 सही सनद के साथ। लिहाजा तारीखी रिवायात और मुअत्बर मसादिर में ये साफ मौजूद है कि मुआविया शराब फरोख्त करते थे, जैसा कि उबादा बिन सामत ने शाम में उनके ऊँटों पर लदी शराब ज़ाया की। और दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन बुरैदा की रिवायत में यह आया कि उन्होंने खुद शराब भी पी थी। तो दोनों पहलू एक दूसरे की तस्दीक करते हैं, यानी जो शख्स शराब फरोख्त कर रहा है उसका पीना भी लाजमी तौर पर साबित है, और ये दोनों चीजें सही अहादीस और तारीख से पूरी तरह साबित हैं। अब आते हैं नारे किसास में। नारे किसास एक ड्रामा था। इब्ने तैमिया का इतराफ है ये, मिनहाजुस सुन्नत जिल्द 4 सफ़ा 407। वो कहते हैं अली के फौत होने के बाद लोग मुआविया पर मुत्तफिक हो गए और वो सब मुसलमानों का हुक्मरान बन गया। इसके बावजूद वो कातलीन उस्मान जिंदा थे, उन्हें कत्ल ना किया। रिवायत किया गया है कि जब मुआविया मदीना आया ताकि हज करे तो उसने आवाज सुनी, हाय अमीरुल मोमिनीन, हाय अमीरुल मोमिनीन। मुआविया ने पूछा ये क्या है? लोगों ने कहा उस्मान की बेटी उस्मान पर रो रही है। जब लोग चले गए तो मुआविया उसके पास गए और कहा, ए चचा की बेटी, लोगों ने कराहत के साथ हमारी इताअत कबूल की है और हमने गुस्से को जब्त में रखते हुए दरगुजर की पॉलिसी अपनाई है। अगर हम दरगुजर करना छोड़ दें तो लोग हमारी इताअत करना छोड़ देंगे। खैर मनाओ कि किसी और की बेटी नहीं हो, और किसी और की बेटी होने के बजाय अमीरुल मोमिनीन की बेटी हो। खबरदार अगर दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से उस्मान का जिक्र सुनूं। अब आते हैं इस हदीस पर। ऐ अल्लाह, इसे यानी मुआविया को हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना और उसके जरिए लोगों को हिदायत दे। तहकीक और तज्जिया, मुहद्दिसीन का कलाम। इमाम तिर्मिज़ी ने खुद इस रिवायत को जिक्र करने के बाद फरमाया, हाजा हदीस हसन गरीब, यानी इसकी सनद में कलाम है। ये बिल्कुल मजबूत दर्जे यानी सही की रिवायत नहीं है, लेकिन हसन गरीब के दर्जे की है। इमाम ज़हबी, इब्न हजर और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस रिवायत को जिक्र किया है, लेकिन इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया और बाज ने इसको ज़ईफ भी कहा है, क्योंकि उसके रावी में अबू ज़रा बिन अम्र बिन जरीर हैं, जिनके ज़ब्त पर इख्तिलाफ है। जामे तिर्मिज़ी में मनकुल ये रिवायत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया के लिए दुआ की, ऐ अल्लाह इसे हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना और इसके जरिए लोगों को हिदायत दे। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं बल्कि गढ़ी हुई रिवायत है। अहले तहकीक मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ बल्कि मौजू करार दिया है। उसूली तौर पर देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमेशा हकीकत में जाहिर हुई। जैसे हज़रत साद बिन अबी वक्कास की बद्दुआ एक शख्स पर लगी तो वो लंबी उम्र पाकर पागल हो गया, या हज़रत अनस व इब्ने अब्बास के लिए की गई दुआएं उनकी जिंदगियों में जाहिर हुई। अगर वाकई ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकलती तो लाजमन मुआविया की जिंदगी में हिदायत और खैर नुमाया होती, लेकिन तारीख गवाह है कि मुआविया ने शराब बेची और पी, सूद लेन देन राइज किया। सही मुस्लिम 4061। अहले बैत व सहाबा पर जुल्म ढाए और यजीद जैसे फासिक को वली अहद बनाया, ये सब हिदायत के सरासर मुनाफी हैं। इसीलिए मुहद्दिसीन जैसे इब्ने जौजी ने इस रिवायत को मौजू कहा और अलबानी ने भी ज़ईफ करार दिया। नतीजा ये कि ये रिवायत सियासी तौर पर गढ़ी गई है ताकि मुआविया को हादी व मेहदी के तौर पर पेश किया जा सके, जबकि हकीकत में उनकी जिंदगी में ऐसी कोई सिफत दिखाई नहीं देती। जामे तिर्मिज़ी की ये रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह इसे हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना और इसके जरिए लोगों को हिदायत दे। दरअसल साबित नहीं। इमाम इब्न जौजी ने इसको अपनी किताब अल मौज़ूआत जिल्द 2 सफ़ा 25 में दर्ज किया और साफ कहा यह रिवायत गढ़ी हुई है। हकीकत यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमेशा अपनी असल के मुताबिक जाहिर हुई।
जैसे हजरत साद बिन अबी वक्कास की बद्दुआ एक शख्स पर जाहिर हुई या हजरत अनस और इब्न अब्बास के लिए दुआ के असरात उनकी जिंदगियों में देखे गए। अगर ये दुआ वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली होती तो लाजमन मुआविया की जिंदगी में हिदायत व तकवा नुमायां होता। लेकिन तारीख के अवराक गवाही देते हैं कि मुआविया ने शराब फरोशी और शराब नोशी की। तारीख दिमश्क, सीरा अलामुन नबला, सूदी लेन देन का हुक्म दिया, मुस्लिम 4061, अहले बैत व सहाबा को सताया और यजीद जैसे फासिक को वलीअहद बनाया, ये सब अमाल हिदायत के सरासर मुनाफी हैं। इसलिए मुहद्दिसीन का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है कि ये दुआ गढ़ी गई ताकि मुआविया को मसनूई तौर पर हादी व मेहदी बनाकर पेश किया जा सके, जबकि उनकी जिंदगी में इस दुआ का कोई असर नहीं दिखाई देता। अगर वाकई हादी और मेहदी का लक़ब मुआविया जैसे शख्स के लिए मान लिया जाए तो ये दीन की असल रूह के खिलाफ होगा, क्योंकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हादी और मेहदी वही होता है जो अदल कायम करे, तक़वा व परहेज़गारी इख्तियार करे, कमज़ोरों का सहारा बने और मजलूमों के खून से दामन बचाए। लेकिन तारीख गवाह है कि मुआविया की जिंदगी जुल्म जबरी से भरी हुई थी। उन्होंने खिलाफत अली के खिलाफ मुसल्लह बगावत की, बेगुनाह सहाबा व ताबईन पर जुल्म ढाए, अहले बैत को सताया, सूद और शराब जैसे कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब किया या फरोख्त दिया और यजीद जैसे फासिक को उम्मत पर मुसल्लत किया। ये सब अफ़ाल किसी हादी व मेहदी की शाया निशान नहीं, बल्कि इसके बरक्स गुमराही, दुनिया तलबी और जुल्म की अलामत हैं। इसीलिए मुहद्दिसीन और नाक़दीन ने बिल इत्तिफाक कहा कि जामे तिर्मिज़ी की ये रिवायत सही नहीं बल्कि घड़ी गई है ताकि मुआविया को मसनूई तौर पर नेक और साले जाहिर किया जाए। अगर कोई शख्स वाकई हादी व मेहदी होता तो उसके किरदार से उम्मत को अदल, इंसाफ, इल्म और तकवा मिलता, न कि कत्ल व गारत, फितना व फसाद और जुल्म की रिवायत। इसलिए अल्लाह की पनाह है कि कोई गुमराह हुक्मरान हादी व मेहदी के मुकाम पर फाइज माना जाए। सुनन नसाई 3029 की रिवायत अपनी सनद के एतबार से सही है और मुहद्दिसीन ने इसको मोतबर माना है। इसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद ये कह रहे हैं कि लोग अरफात में बुलंद आवाज से तलबिया यानी लब्बैक नहीं पुकार रहे थे, क्योंकि मुआविया ने इससे रोक दिया था। इब्न अब्बास ने जब ये सुना तो खुद लब्बैक कहकर ऐलान किया और फरमाया, इन्होंने अली की दुश्मनी में सुन्नत को छोड़ दिया। पस मंजर, तलबिया बुलंद आवाज से कहना सुन्नत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ साबित है। सहाबा कराम इस पर अमल करते थे। मुआविया ने अपने दौरे हुकूमत में ये हुक्म जारी किया कि लोग बुलंद आवाज से तलबिया ना कहें। बाज़ ने कहा ये बिदअत है और बाज़ ने कहा ये उनकी इज्तिहादी गलती थी। इब्न अब्बास ने साफ कहा कि इसकी असल वजह हजरत अली से बुग़्ज़ से था, क्योंकि अली हमेशा तलबिया बुलंद आवाज से पढ़ा करते थे। मुआविया को लगा होगा कि ये रिवाज अली ने जारी किया है, तो अली के बुग़्ज़ में उस सुन्नत को ही रद्द कर दिया। हुक्मन वजह क्या थी? सियासी कशमकश और जंग सिफ़ीन के बाद हजरत मुआविया और उनके गिरोह में हजरत अली के साथ शदीद सियासी व ज़ाती इख्तलाफात पैदा हुए। बनु उमैया की पॉलिसी ये थी कि वो हजरत अली की शान और उनके आसार को कमजोर करें ताकि लोग उनकी तरफ न झुकें। इसी वजह से कई तारीखी रिवायात में मिलता है कि मिंबरों पर अली को सब व शितम करवाया जाता था, उनके आसार और सुन्नतों को दबाने की कोशिश की जाती थी, और जो चीज अली से खास तौर पर मंसूब हो, जैसे बुलंद आवाज से तलबिया कहना, उसे कमजोर करने की कोशिश की जाती थी। मुहद्दिसीन व मौरखीन का तबसरा। इमाम नसाई ने ये रिवायत अपनी किताब में बाबुत तलबिया के तहत जिक्र की ताकि ये वाज़ेह हो कि सुन्नत बुलंद आवाज से तलबिया कहना है और जो इसके खिलाफ करे वो सुन्नत को छोड़ रहा है। इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी जिल्द 3 सफ़ा 405 ने भी इशारा किया है कि ये वाक़या सियासी पस मंज़र रखता है और इसका मकसद सिर्फ अली की मुखालफत थी। इब्न तैमिया ने इस तरह की रिवायत को सियासी फितना कहा और मुआविया की तरफ से इज्तिहादी गलती माना, लेकिन ये भी कहा कि इसमें अली के खिलाफ सख्त तासुब शामिल था। इस रिवायत से साफ जाहिर है कि मुआविया को हजरत अली से बुग़्ज़ है, इसी बुग़्ज़ की वजह से बाज़ सुन्नतों को तर्क या दबा दिया गया ताकि अली की पहचान मिटाई जा सके। यही वजह है कि इब्न अब्बास ने गुस्से में कहा, हलाकत है उनके लिए जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल डाला। बुखारी व मुस्लिम। ये बिदअत व बिगाड़ दरअसल सियासी इनाद की पैदावार था, न कि दीनी इज्तिहाद। बनु उमैया के दौर में हजरत अली की सुन्नतों और फजाइल को दबाने की पॉलिसी तारीख के मौत पर मसादिर में वाज़ेह मिलती है। जंग सिफ़ीन और उसके बाद सियासी दुश्मनी इस हद तक बढ़े कि मुआविया ने अली के आसार व सुन्नतों को मिटाने के लिए इक़दामात किए। सबसे नुमाया ये था कि जुमा और ईदैन के खुतबों में अली पर सब व शितम करवाया जाता था। सही मुस्लिम किताबुल फज़ाइल हदीस नंबर 2404, तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 188। इसी पॉलिसी के तहत बाज़ सुन्नतें जो अली से ख़ास मंसूब थी उन पर पाबंदी लगा दी गई। मिसाल के तौर पर
عرفات میں بلند آواز سے تلبیہ کہنا۔ حالانکہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے تواتر کے ساتھ ثابت تھا۔ حضرت ابن عباس نے جب دیکھا کہ لوگ معاویہ کے ڈر سے تلبیہ نہیں کہہ رہے تو فرمایا لبیک اللہم لبیک، اور کہا لوگوں نے علی کی دشمنی میں سنت کو چھوڑ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3029، مجمع الزوائد للحسمی جلد 3 صفحہ 241۔ مزید یہ کہ بنو امیہ نے اہل شام اور دیگر علاقوں میں علی کے فضائل کو پھیلنے سے روکا، ان کے مناقب کی احادیث کو دبایا اور متوازن کرنے کے لیے دوسرے صحابہ کے لیے مناقب گڑھنے کا بھی اہتمام کیا۔ ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ جلد 11 صفحہ 44، ذہبی میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 18۔ محدثین نے ان اقدامات کو محض اجتہادی خطا نہیں بلکہ ایک سیاسی تعصب کا نتیجہ قرار دیا ہے، جس کے اثرات طویل عرصے تک امت مسلمہ میں باقی رہے۔